यस बच्चे, गुड आफ्टरनून। बच्चे देखना, आवर टुडेज टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू uniform magnetic field, inside uniform magnetic field. In the previous class we have discussed a special case of motion of charge particle inside a uniform magnetic field. ठीक है, but today I will repeat that topic too, because I think 2 to 3 students were absent in the previous class. So our today's topic will be motion of charge particle, and we will completely discuss every possibility of motion. So it may be possible that the class may be of 40 to 45 minutes. ठीक है, so our today's topic is motion of charged particle. Motion of charged particle in uniform magnetic field. In uniform magnetic field. Like we did in the last class, whenever a charge particle moves inside a magnetic field, then the charge particle experience a force according to the formula Fm. Fm means magnetic force, which is equal to Q of V cross B. Q of V cross B. Okay. Now, according to this force, we will decide the path of the particle according to the formula of force. Okay. अभी भी वेटिंग एरिया में है कुछ बच्चे, चलो. Now, our first case will be when the charge particle is moving perpendicular to the magnetic field. बच्चे, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ वो चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. इन दिस केस योर Fm इज मैग्नेटिक फोर्स. व्हाट इज Fm? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स. एंड व्हाट इज V? V इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. V इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. And what is B? B is the magnetic field. That magnetic field, that uniform magnetic field in which the charge particle will move. What is B? B is magnetic. Okay. And what is Q? Obviously this Q means charge. This Q means charge. Now, first of all, you need to know the direction of this magnetic force, that in which direction your charge will experience the force. So your direction will be decided by the right hand rule. You have to curl your fingers from V vector to B vector, from V vector to B vector, and there will be two possibilities for the directions. If your Q charge is positive, then the direction of force, magnetic force, will be same as that of V cross B. And if your Q is negative, then the direction of magnetic force will be opposite as that of V cross B. ठीक है, we will consider one or two examples. By that examples, the direction will be clear to you. Okay, so there are two possibilities. Your charge Q, it can be a positive charge, it can be a negative charge. If this Q charge is a positive charge, then the direction of magnetic force is same as that of V cross B. V vector cross B vector. V vector is velocity vector, B vector is magnetic field vector. Okay, and if Q is negative, magnetic force will be in opposite direction as that of V cross B. Okay, we have discussed this in the previous class. That's why कंप्लीटली डिटेल के अंदर मैं लिख नहीं रहा, बट डिस्कस कर चुके हैं इस चीज. ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल देखना, एग्जांपल तो डायरेक्शन हो क्लियर हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर योर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज यूनिफॉर्म,
that is along the positive x direction. Suppose this is the direction of magnetic. Suppose this is the direction of magnetic, and your charged particle is coming in this direction. Your charged particle is coming in this direction. Obviously, let us consider a positive charged particle. Okay. Now you know the direction of velocity of charged particle. You know the direction of magnetic field which is uniform. Now you need to calculate the direction of force. You need to find out the direction of force for this positive charge, magnetic force. बच्चे किस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फोर्स वो देखना. According to this formula, for positive charge, the direction of force will be same as that of V cross B. So, according to right hand rule, जहां पे भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखे बच्चे वहां पे आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है. राइट हैंड थंब रूल जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट दिखे. ठीक है. नाउ द वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सी, first vector is velocity vector, so you have to keep the fingers of right hand in the direction of velocity. This is the direction of velocity. Your charged particle is coming in this direction. Okay. Now if you want to cross V in the direction of B, you have to do like this, so that V cross B can be easily possible. This is direction of velocity and this is B. V cross B करके दे. V cross B. Your thumb is coming in the outward direction. This is V, V cross B. Your thumb is pointing in the outward direction. It means this charge will experience a force in the outward plane, perpendicular to this ball, like this. दोबारा देखना एक बार बच्चे. This is velocity. ठीक है. थंब एक बार होल्ड करके रखो. This is velocity vector, and your B vector is in this direction. So you cannot cross like this. You have to keep your fingers like this. So velocity is in downward direction. Now, according to V cross B, if you are crossing your fingers like this, the thumb will point in the outward direction. So this thumb will give the direction of magnetic force. This thumb will give the direction of magnetic force. It means this charged particle will experience a magnetic force outward to the plane of ball. Outward to the plane of ball. Is that clear? The direction is clear? Yes? Yes बच्चे, the direction. Repeat. Okay. देखो, according to V cross B, you will get the direction of magnetic force. Your V vector is in downward direction. So the fingers of right hand, they are pointing in the downward direction like this. They are pointing now in the downward direction. And what is the direction of magnetic field? In this side. Check the direction of thumb. Your thumb is coming outward to the plane of ball. If you are crossing V in the direction of B, your thumb is coming in the outward direction. It means V cross B. What it means? It means the direction of magnetic force is in the outward direction. Yes, clear है बच्चे? अब example number 2. Let us suppose your magnetic field is in upward direction. ठीक है. Suppose this is your magnetic field in the upward direction, and your charged particle, let's say this time the charged particle is negative. Your charged particle is coming perpendicular to this field. It means the velocity vector is in this direction. Yes, bache, what should be the direction of force? It is a negative charge. What should be the direction of force? For negative charge, यहां पे आप माइनस साइन लगाएंगे ना बच्चे. वेक्टर क्वांटिटीज में अगर किसी वेक्टर के सामने माइनस लगा हो, इट मींस द डायरेक्शन इज अपोजिट 180 डिग्री इन द 180 डिग्री डायरेक्शन. ओके, सो फॉर नेगेटिव चार्ज यू हैव टू पिक दैट डायरेक्शन अपोजिट टू द V cross B. Opposite to V cross B. What is the direction of V cross B?
hold your fingers in the direction of velocity vector. The velocity is in this direction, so velocity is in this direction. What is the direction of magnetic field? Upward. Your thumb किधर आ रहा है बच्चे? This is velocity vector and cross the velocity vector in the direction of magnetic field. Thumb किधर आ रहा है? Outward आ रहा है. It means इस केस में आपका जो नेगेटिव क्यू चार्ज है, थंब आउटवर्ड आया, पर नेगेटिव चार्ज के लिए हमें पता है डायरेक्शन क्या लेनी है, v क्रॉस b के अपोजिट लेनी है ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन जो कि यहां पे आएगा. ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b. दिस आउटवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, बट यू हैव टू टेक द अपोजिट डायरेक्शन. इट मींस द फोर्स विल बी इन द इनवर्ड प्लेन, यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड बट इन द इनवर्ड डायरेक्शन. Is that clear? For outward, I will make a dot, and for inward, the force I will make a cross. It means in this case, the magnetic force will be inward to the plane of board, and in this case, the magnetic force will be outward to the plane. Is that clear? Yes, bache? Yes, Harman, Hasrat, Simran. The directions of magnetic forces are clear, na? Okay. बाकी सब भी बच्चे एक दो की आवाज आई. हरमनदीप सिंह, इज दैट क्लियर? महकप्रीत, करणवीर, ओके. सो ये तो था सिर्फ कि कैसे आपको डायरेक्शन जज करनी है, हाउ टू टेल द डायरेक्शन यूजिंग दिस रिलेशन. नाउ वी विल यूज दिस रिलेशन टू टेल द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल. ठीक है, देर आर 2 to 3 possibilities. So first of all, we will discuss the case when the charge particle enters perpendicular to the magnetic. When the charge particle enters perpendicular to the magnetic. Here, so our first case is when charge Q, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, व्हेन चार्ज Q एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B. व्हेन चार्ज पार्टिकल Q एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B. Enters perpendicular to magnetic field B. ठीक है, we have discussed this case in the previous class, but repeat कर रहे हैं मैं जो भी. ठीक है, suppose your magnetic field is in the inward to the plane of. This is your uniform magnetic field like this. ठीक है, सपोज दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन कैसे है, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. ठीक है, इट इज गोइंग इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ. यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं एंड सो. योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. मींस द डायरेक्शन इज लाइक दिस, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. ओके, एंड योर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, लेट्स से प्लस Q, that is coming in this direction like this, plus Q, the velocity of this charge is like this, perpendicular to magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड बच्चे इस तरह से है कुछ, मान लो ये अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे है, कुछ ऐसे, परपेंडिकुलर टू दिस. ठीक है, सो when the charge particle is coming in the perpendicular direction, what will be the path of this charge particle? First of all, path deviate होगा ना, क्यों? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल प्लस Q पे एक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Fm इज इक्वल टू QV क्रॉस B. सो चेक करो, जैसे ही चार्ज पार्टिकल आपके इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करा, तो क्या डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फोर्स की? यस, एनीवन? करणबीर सिंह, दिस प्लस Q
will experience a force in the direction. Yes बच्चे बताओ, what is the direction? सिमरन, डायरेक्शन क्या होगी भी? अपवर्ड. यस, वेरी गुड. देखना, योर चार्ज पार्टिकल, the velocity is like this, it is positive charge, the velocity is in this direction, but the magnetic field is inward na, so you have to cross this finger in the inward direction and your thumb will point in the upward direction. Clear hai? When the charge particle is going like this, v cross b करा, b की मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? अपवर्ड आ रही है. यानी जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल बच्चे इसमें एंटर करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो द पाथ विल बी समथिंग कर्व्ड like this. It will curved because it experience a force in the upward direction. Suppose अब चार्ज पार्टिकल आपका यहां पहुंच गया, यहां पे आपका चार्ज पार्टिकल आ गया ना. Now what is the direction of velocity here? This is the direction of velocity ना. This is the direction of velocity. The velocity is in this direction. V cross B करके देखो, V क्रॉस बी, थंब इज इन दिस डायरेक्शन, यानी कि इस पे फोर्स लगी इस डायरेक्शन में. मैं बाद में इनको इरेज करूंगा ताकि एक साफ सुथरा फिगर दिख पाए आपको. यानी कि जैसे ही आपका चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, उस पे एक फोर्स लगी एक फिक्स पॉइंट की तरफ. ध्यान से देखो, ये भी एक ही पॉइंट की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये भी इसी पॉइंट की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस. ठीक है, लाइक दिस. यू कैन चेक एट एवरी पॉइंट. यहां पे चेक कर लो, चाहिए यहां पे वेलोसिटी वेक्टर बेटा इस डायरेक्शन में होगा ना. द वेलोसिटी वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. द फोर्स इज कमिंग टुवर्ड दैट फिक्स पॉइंट. आ रहा ना भी उसी फिक्स पॉइंट की तरफ. चाहे आप यहां पे चेक कर लो, एस एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. v क्रॉस b करो, v क्रॉस b करो. This is v vector cross b. The thumb is coming in the downward direction. It means at this point the force is toward this fixed point. अगर आप carefully observe करोगे ना बच्चे, at every point the magnetic force is acting toward this center. The magnetic force is acting toward this center. ठीक है. And अगर आपको सेंटर की तरफ लगने वाली एक फोर्स मिल जाए तो उस टाइम पे पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं, इस पॉइंट पे ऊपर लगी, यहां पे पहुंचा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर, यहां पे भी इस तरफ लगी, फिर यहां पहुंचा सेंटर की तरफ, यहां पहुंचा सेंटर की तरफ, यहां पे पहुंचा सेंटर की तरफ. अब यहां पे भी देख लेते हैं. द वेलोसिटी वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. v क्रॉस b करके देखो, v cross b, this is v vector in the downward direction. v cross b, that is coming to the right side. I think अब आपको पूरा पाथ क्लियर हो. यस बच्चे, पाथ क्लियर है ना. मैं कुछ एरोज इरेज करने जा रहा हूं. यस, महक, अरमन, सिमरन, हसरत, पाथ क्लियर है बच्चे. यही बाद में जाके साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बनेगा, इसीलिए कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए रिपीट भी करा मैंने इस टॉपिक का. सो व्हेन योर चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट विल एक्ट एज द सेंटर. टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट, इनिशियली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फिर यहां पहुंचा, फिर इन दिस डायरेक्शन, फिर यहां पहुंचा, इन दिस डायरेक्शन यहां पहुंचा, एंड सो ऑन. पूरा सर्कल ट्रेस कर गया हूं. यानी एक चीज तो क्लियर है बच्चे कि जब भी आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, उस टाइम पे उसका पाथ कैसा होगा? द पाथ विल बी सर्कुलर.
the path will be circular. The path will be circular. Is that clear? ठीक है, the path will be circular. Now second thing, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सर्कुलर पाथ उसने ट्रेस करा, इसका रेडियस क्या हो? What should be the radius? This radius. Now you need to calculate this radius. ठीक है, so first is path, second they will ask you about the radius. So let us calculate the radius of this circular. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. मैंने इसको टॉपिक बनाया ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस विल वर्क एज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, नाउ you have to calculate radius, this radius. Let us suppose the charge particle is moving with velocity v. चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी? v थी. अब एक बात बताओ बच्चे, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा इसलिए करा क्योंकि इसको हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ एक्ट होने वाली एक फोर्स मिल रही थी, नेसेसरी फोर्स मिल रही थी जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी होती. उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल. ठीक है, तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? मैग्नेटिक फोर्स ही तो है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना सर. यानी कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं हम, वो फोर्स जो किसी बॉडी को रिक्वायर्ड हो. द बॉडी, that force which is required by a body to perform circular motion. और याद रखना, it is not a force, it is just the requirement to perform circular motion, and this requirement can be fulfilled by any force. This requirement can be fulfilled by any force. For example, in case of earth sun system, in case of earth sun system, your earth is revolving around the sun. Who is providing that centripetal force? The gravitational pull of the sun is providing the necessary centripetal. Okay, in this case, to perform this circular motion, magnetic force is providing the necessary centripetal. Yes, Hasrat, what is the formula for centripetal force? Yes, bache, what is the formula for centripetal force? बहुत जल्दी भूल गए, क्लास 11th में करके आए हैं ये चीजें. महक, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? हरमनदीप कौर, mv square by the necessary force which is required by a particle to perform circular motion is known as centripetal force, and the formula is mv square by r. ठीक है, so this should be equal to magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको. फॉर्मूला क्या था? क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी साइन थीटा, where theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector, which is 90. So sin 90 is 1. Sin 90 is 1. यानी the magnetic force is equal to q v b. v से एक पावर कैंसल आउट, रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस विल बी इक्वल टू, यहां से रेडियस कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू m इंटू वी डिवाइड बाय q इंटू b. दैट इज द रेडियस. इज दैट क्लियर? यस, रेडियस क्लियर है बच्चे? ओके, नाउ थर्ड थिंग, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. मतलब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा. टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड या वन रिवोल्यूशन, दैट इज टाइम पीरियड. सो हमने पाथ चेक करा, पाथ इज सर्कुलर, उस पाथ का रेडियस कैलकुलेट करा जो आया मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय
चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, Q इंटू बी। नाउ मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा बिकॉज स्पेस की प्रॉब्लम है। देखना यहां पे, देखना, वी विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड आल्सो। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाय स्पीड। एक चक्कर पूरा लगाने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 2 पाई इंटू रेडियस। 2 पाई यार, ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ना, डिवाइड बाय स्पीड, डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज इक्वल टू टाइम। रेडियस कैलकुलेट कर रखी है हमने, रेडियस कितना है? mv डिवाइड बाय q इंटू बी। सो रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। सो t इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई इंटू रेडियस m इंटू वी डिवाइड बाय क्यू बी इंटू सॉरी v था, ये वाला v ना। सो v से v कैंसल आउट, v से v कैंसल आउट। द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से? देखिए, द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड विल बी 2 पाई m डिवाइड बाय q इंटू बी। 2 पाई m डिवाइड बाय q इंटू बी। क्लियरली दिख रहा है बच्चे? योर टाइम पीरियड इज independent of the velocity of the charge particle. This time period is independent of the velocity of the charge particle. यानी अगर आप दो सेम चार्ज, सेम मास हो, सेम चार्ज हो, एक को ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक को कम स्पीड से, बट बोथ ऑफ देम विल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट द सर्कल बिकॉज योर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये मत समझना कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर ज्यादा तेज एंटर करा तो वो बहुत जल्दी सर्कल पूरा कर लेगा, नहीं। वो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है या फिर चार्ज पे डिपेंड करता है उसके। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। सो चाहे अगर मैंने दो आइडेंटिकल चार्जेस अलग अलग वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाए ना, देन देयर टाइम पीरियड विल बी सेम बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्वेश्चंस बनते हैं यहां से 1 मार्क्स के। Is it clear? क्लियर है बच्चे? ओके, चलो एक और केस देख लो। ये पहले हो चुका है इसलिए मैंने काफी फास्टली करवाया है। ये कल की क्लास में मैं डिस्कस कर चुका था, इसको जस्ट रिपीट करा। एक केस और देख लेते हैं। ये तो एक स्पेशल केस था ना कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा 90 रख के एक पर्टिकुलर स्पेशल केस कर रहा था। अब मैं वो वाला थीटा लूंगा जो अदर देन 90 हो, मतलब एट एनी एंगल एक्सेप्ट 90। ठीक है? सो सेकंड केस इज देखना बच्चे, मान लीजिए सेकंड केस है। हाँ, सेकंड केस का नाम लिख देता हूं। when charge Q enters at an angle theta with B यानी मैग्नेटिक, मतलब इस बार 90 नहीं है, कुछ अलग एंगल है भाई, मैंने उसको थीटा मान। ठीक है? सपोज the magnetic field is in this direction. Your magnetic field is in this direction. Okay, and your charge particle is not perpendicular to this. Let's say that is at some angle theta. Yani this is the velocity, this is the direction of velocity of charge particle, and this is the direction of magnetic field. And what is the angle between these? The angle is given as, let's say, theta. The angle is theta. Okay.
Now you need to know the path of this charge particle, and what type of charge? That is positive charge. क्लियर बच्चे? लास्ट केस में हम परपेंडिकुलर वाला केस कर रहे थे. द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस एंड द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. बट इस बार मैं वो केस डिस्कस कर रहा हूं व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट सम एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट एंगल इज नॉट 90. ओके, दैट एंगल इज थीटा. नाउ व्हाट शुड बी द पाथ, ये देखना है. सबसे पहले तो बच्चे आपको इस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स देखने हैं लाइक दिस. सबसे पहले तो आपको इसके कंपोनेंट्स चेक करने. क्लियर? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर? यस सिमरन, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर? याद है ना कंपोनेंट? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद है? जिस तरफ थीटा दे रखा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट होता था? कोस थीटा. यस, गुड. सो इसका कंपोनेंट इसके ऊपर क्या बनेगा? v कोस थीटा. जिस तरफ एंगल दे रखा हो भाई उस तरफ कोस वाला कंपोनेंट. इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, यानी यहां पे इसके परपेंडिकुलर, जिस तरफ एंगल उधर कोस वाला और दूसरी तरफ साइन वाला कंपोनेंट ना, यानी इधर क्या बनेगा? v sin theta. v sin theta. So this component of velocity is v sin theta and this component of velocity is v cos theta. ठीक है? अगर गौरवाल देखा, v sin theta जो है, v sin theta that is perpendicular to magnetic and v cos theta that is parallel to magnetic. Oh sorry, parallel. V cos theta is parallel to magnetic field. Okay, so in the last case we have discussed obviously this v sin theta. ये भी तो velocity होगी ना बच्चे. Sin theta is a number, v is the velocity. So ये obviously v sin theta भी कोई ना कोई velocity ही है. ठीक है, वो अलग बात है कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो चुकी है, sin theta से मल्टीप्लाई हो चुकी है. ऐसे ही v cos थीटा भी वेलोसिटी ही है, बस अलग बात है ये cos थीटा से और मल्टीप्लाई होगी, किसी नंबर से और मल्टीप्लाई होगी. ओके, सो व्हेन द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यू नो दैट वेलोसिटी विल मेक द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन सर्कल्स. कहने का मतलब ड्यू टू v sin थीटा पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा. ड्यू टू v sin थीटा पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा. और ड्यू टू v cos थीटा, यस बच्चे, ड्यू टू v cos थीटा, देखो ये भी एक वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी है. अब इसको v क्रॉस b करो, ऐसे सर्कल्स बनेंगे. मैं यहां पे अलग से बना रहा हूं. ये रहा b, इस v sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से पहले एक सर्कल बनेगा. ऐसे बना एक सर्कल. ठीक है, बट ड्यू टू दिस v cos थीटा, भाई चार्ज पार्टिकल सर्कल में भी घूम रहा है और v cos थीटा उसको आगे भी लेके जा रहा है, यानी पाथ पता क्या होगा? एक्चुअल पाथ क्या होगा? लाइक दिस, द पाथ विल बी लाइक दिस. अब थोड़ा सा समझना इसको क्यों हो रहा है ऐसा. इस पाथ को हेलिकल बोलते हैं वैसे. देखो v sin थीटा ने v क्रॉस b करके देखो, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, v क्रॉस b, v sin थीटा क्रॉस b करके देखो, अंदर को आ रही है, यानी कि इसके ऊपर एकदम से अंदर को फोर्स लगेगी, पूरा सर्कल बनेगा इस परपेंडिकुलर की वजह से. सर्कल तो बन रहा है परपेंडिकुलर की वजह से, पर ये आगे भी बढ़ता जा रहा है, ये आगे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है. उसका रीजन क्या है? ये जो v cos थीटा, यानी इस चार्ज पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी तो ऑलरेडी थी ना, कितनी? v cos थीटा. पर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर भी कुछ ना कुछ थी, जिसने इसको सर्कल में घुमाया. v sin थीटा ने ऐसे सर्कल में घुमाया और v cos थीटा आगे लेके जाने लगी, ऐसे पाथ बन गया. समझ आ रहा है? v sin थीटा ने सर्कल में घुमाया, v cos थीटा इसको आगे लेके जा रही है. तो ये पाथ कैसा बन गया? इस पाथ का नाम होता है, इस पाथ का नाम क्या है बच्चे? द पाथ इज
हेलिकल। बोलो, ये बात समझ आ रही है? v sin theta is perpendicular to b, and in the previous case we have discussed that the perpendicular component of velocity which is perpendicular to b will make the particle to move in circle। तो v sin theta ने उसको सर्कल में मूव करवाया इस तरह। पर v cos theta ने क्या करा? v cos theta भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, चार्ज पार्टिकल ऐसे भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, ऐसे भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, तो ऐसे एक हेलिकल पाथ बने। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, पाथ इज क्लियर? यस, ओके, पाथ इज क्लियर। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। सर्कल तो यहां पे भी बन रहा है ना, तो रेडियस तो इस सर्कल का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट इज पाथ, सेकंड इज रेडियस। रेडियस कैसे बताओगे बच्चे? फर्स्ट इज पाथ, सेकंड इज रेडियस। हाउ विल यू कैलकुलेट द रेडियस? रेडियस इस बार सर्कल में कौन घुमा रहा है? v sin थीटा वाला कंपोनेंट। इस बार सर्कल में कौन घुमा रहा है? v sin थीटा वाला कंपोनेंट। यानी कि इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो कैसे होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी, कौन सा वेलोसिटी? v sin थीटा वाली वेलोसिटी, एम वी sin थीटा, क्योंकि इसी की वजह से तो सर्कल बनाना। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, दैट इज प्रोवाइडेड बाय विच मैग्नेटिक फोर्स? क्यू v वेक्टर, what is v वेक्टर? v sin थीटा, एंड b वेक्टर q इंटू वेलोसिटी इंटू क्यू v भी होता था ना। एक मिनट, मैं पाथ इरेज कर रहा हूं, पाथ बना लेना। ये फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फोर्स का बच्चे? फॉर्मूला था क्यू वी क्रॉस बी। पर इस बार किस वेलोसिटी की वजह से ये सर्कल बना है? ये v sin थीटा वाली वेलोसिटी की वजह से बना। तो यहां पे क्या बनेगा? q v sin थीटा क्रॉस b। ठीक है, ये बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे ये वो वेलोसिटी होती थी जिसकी वजह से सर्कल्स बनते थे, पर अब इस बार v sin थीटा की वजह से सर्कल बने, तो q v sin थीटा ही लेना ना। ऑब्वियसली वो वेलोसिटी लोगे जिसकी वजह से हम सर्कल देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते ही एक और साइन थीटा आना चाहिए था, पर हमें पता है कि हमारी इस v साइन थीटा वाली वेलोसिटी और इस b के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। हमारी इस v साइन थीटा और इस b के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली क्रॉस सोल्व करने के बाद जो साइन एंगल आना चाहिए था वो 90 हो चुका है। यानी इस बार कितनी फोर्स लग रही है? क्यू v साइन थीटा इंटू b। क्यू वी क्रॉस बी करना था, मानते हैं, पर यहां पे वही वेलोसिटी लेते हैं जिसकी वजह से हम फोर्स देखने जा रहे हैं। अब v sin थीटा की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिला था, तो मैं यहां पे वही वेलोसिटी पुट करूंगा ना जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो v sin थीटा रखा, क्रॉस एज इट इज, b एज इट इज। अब क्रॉस को सोल्व करने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि एक और साइन ऑफ समथिंग एंगल आना चाहिए था, पर वो एंगल किसके किसके बीच में होगा? v sin थीटा और इस b के बीच में, v sin थीटा और इस b के बीच में। और आप जानते हो v sin थीटा और इस b के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो एंगल इज 90। क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करने के बाद भी यहां पे q v sin थीटा इंटू b ही बचेगा। ठीक है, साइन 90 हो जाएगा अगला। क्लियर? तो यहां से v sin थीटा से बचे एक पावर कट हो जाए। ठीक है, v sin थीटा से एक पावर कट हो जाएगी। और रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला यहां से रेडियस इज इक्वल, ये r उधर क्यू बी नीचे आ जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू इंटू बी। थोड़ा सा ही फर्क है ना, पीछे एम वी बाय क्यू बी था पिछले केस में, अब एम वी साइन थीटा आ गया। यानी यहां पे वही वेलोसिटी के कंपोनेंट पुट करना है जिसकी वजह से सर्कल बनता है।
क्लियर? यानी आप ओवरऑल रेडियस का फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं, m इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय q इंटू बी। पिछले केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट v ही था और इस केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा है, दैट्स वाई यहां पे v sin थीटा। क्लियर एकदम? होमवर्क मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूं, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, और आप बड़े अच्छे से जानते हो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, 2πr डिवाइड बाय स्पीड। आर आपके पास आ चुका, और स्पीड, स्पीड कौन सी पुट करोगे टाइम पीरियड में? भाई जिसकी वजह से सर्कल बना, आप उसी सर्कल का टाइम निकालने जाओगे ना, तो जिसकी वजह से सर्कल बना है उसी के टाइम पीरियड को निकालते वक्त वही वेलोसिटी पुट करोगे। क्लियर? ओके।